કચ્છ એટલે કલા અને સંસ્કૃતિની ભૂમિ, કચ્છ એટલે કે સંત અને સુરાની ભૂમિ. અને એમાં આજે ખાસ કરીને એનએસડીનો જે 5 દિવસનો એક નેશનલ સ્કૂલ ઓફ ડ્રામાનો જે એક મંચનો જે કાર્યક્રમ હતો ભુજ ટાઉન હોલમાં, ગૌરવની વાત છે કે સમગ્ર ભારતમાં 15 સિટીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો, એમાં ગુજરાતમાં માત્ર એક ભુજ, એટલે ખૂબ ખુશીનો પ્રસંગ છે. શરૂઆત જે છે ઓપનિંગ સેરેમનીમાં પદ્મશ્રી છે મનોજ જોશી અને આપણા સાંસદ વિનોદભાઈ ચાવડા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અને આજે ક્લોઝિંગ સેરેમનીમાં ગુજરાતનું ગૌરવ, આપણા કચ્છનું ગૌરવ, આપણા પોતાના એ દેવરાજભાઈ ગઢવી એટલે કે નાનો ડેરો એ જે છે આજે આપણે ઉપસ્થિત રહ્યા છે, એનું સન્માન પણ કરવામાં આવ્યું રજિસ્ટ્રાર દ્વારા. તો દેવરાજભાઈને કહેશું કે દેવરાજભાઈ કેવી ખુશી થાય છે, અને આજે જ્યારે ખુદ આમ કહી શકાય કે તરસ લાગી હોય ને ત્યારે આપણે કૂવા પાસે જવું પડે, પણ આજે કૂવો ખુદ જ્યારે જે છે પ્યાસ પાસે આવે છે. તો દેવરાજભાઈ એની ભાષામાં એમની સ્ટાઇલમાં જે કઈ રીતે બિરદાવે છે. દેવરાજભાઈ, કેટલી ખુશી છે આજ તમે ટાઉન હોલમાં આવ્યા અને તમારું વિશેષ સન્માન પણ કરવામાં આવ્યું. પહેલાં તો નમસ્કાર, જય માતાજી. અને મા ન્યૂઝ દ્વારા સુંદર મજાનું આ બધું આયોજન કરી અને ખાલી કચ્છ નહીં પણ સમગ્ર ભારતમાં આ બધું બતાવે છે, એ બહુ આનંદની વાત છે. અને સાથે સાથે આજે એનએસડી ભારત સરકાર દ્વારા ભારત રંગ મહોત્સવ નિમિત્તે જે 5 દિવસનું ભુજને આયોજન મળ્યું અને ભુજની પ્રજાને અથવા તો આજુબાજુના ગામડાને જે જોવા માટેની તક મળી છે, ખરેખર કચ્છ આખું ભાગશાળી કહેવાય કે આ લેવલવાળી વસ્તુ આપણને કચ્છમાં મળી છે. અને એવા આ સ્કૂલ છે, એમાં એવા આર્ટિસ્ટો પેદા થયા છે, એટલે આપણા ભારતમાં એ આનંદની વાત છે. અને મને અહીંયા બોલાવ્યો અને મારું સન્માન કર્યું તે બદલ પણ હું આભાર માનું છું. ધન્યવાદ. જય માતાજી. ખૂબ ખૂબ આભાર. અંતિમ પ્રશ્ન દેવરાજભાઈને કહેશું કે વસુધૈવ કુટુંબકમ એટલે કે આખું વિશ્વ જે છે કુટુંબ છે, અને સંતવાણી આ જ વસ્તુ કરે છે કે જે છે એ સમગ્ર વિશ્વ એક પરિવાર છે. દેવરાજભાઈ, આ સૂત્રને લઈને આપ શું કહેશો? અને ખાસ કરીને પરેશ રાવલ જે આપણા ગુજરાતનું ગૌરવ અને એનએસડીના ચેરમેન છે, અને એમની એક ઈચ્છા હતી કે ભુજમાં આ જે છે આ સેન્ટર મળે 5 દિવસ માટે, તો એ વાતને કઈ રીતે બિરદાવો? નહીં, ખરેખર ખૂબ વાત છે કે પરેશ સાહેબ જે પરેશ રાવલ એમને આ વાત મગજમાં આવી અને એમને એ થયું કે આ બધું આયોજન જો કચ્છમાં થાય તો કચ્છની પ્રજાને સારી એવી જોવા મળે, બધાને આનંદ થાય. અને સંતવાણી છે કે નાટક છે કે આમાં બધું સારું મળે છે બધાને, અને સારા પ્રોત્સાહનો મળે છે, સારી સંસ્કૃતિ, સારા સંસ્કાર મળે છે. બહુ સારી વાત છે, ખૂબ રાજી થાઉં છું. તો ખૂબ ખૂબ આભાર દેવરાજભાઈનો. અને હવે જે છે નાટક શરૂ થશે ને ત્યારબાદ આપણે એના કલાકારોના પ્રતિભાવ અને જે ઉપસ્થિત લોકો છે એમના પ્રતિભાવ જાણશો. ખૂબ ખૂબ આભાર દેવરાજભાઈ. આજ ઉછરંગ આજ નયનોમાં નેણ, આજ સખી कंचन वरे में. आज हमारा गुजराती में, सर गुजराती में बोलते हैं कि खुशी का प्रसंग है हमारे, और एक तरफ खुशी और एक तरफ दुख भी है, गम है थोड़ा, कि आज 5 दिन जो है वो पूर्ण हो रहे हैं, लेकिन ये पूर्ण विराम हम नहीं समझ रहे हैं, ये टू बी कंटिन्यू है. सर आपका परिचय हमने तो लिया, लेकिन हमारे दर्शकों को आप परिचय दीजिए. और बहुत खुशी है कि एनएसडी भुज आया है सर 5 दिन से. पहले आपका छोटा परिचय. हाँ, मैं प्रदीप महंती हूँ और मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कुल सचिव या रजिस्ट्रार हूँ. तो आज 5 दिवसीय जो हमारे यहाँ के नाट्य महोत्सव था, रंग महोत्सव, तो उसके उद्यापनी दिवस पर मैं यहाँ आया था. और यहाँ भुज में हमारे ये जो फेस्टिवल हमने किया, एक्चुअली ये कहीं ना कहीं बात तो शुरू हुई थी हमारे अध्यक्ष परेश रावल जी की अपना दिशा निर्देशन में, परंतु भुज में आना हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी. और यहाँ आना, यहाँ के लोगों के साथ कांटेक्ट पे रहना, यहाँ की जो थिएटर के दर्शक हैं, थिएटर की जो प्रैक्टिशनर है, एंथुजियास्ट है, उनके साथ कहीं ना कहीं संपर्क करें और उनके साथ मिल के काम करें, उनको अच्छे रंग कर्म दिखाएं, ये सोच के हम लोग यहाँ आए थे. और 5 दिन यहाँ के लोगों ने जो प्यार दिया राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को, महोत्सव को, सचमुच में एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नया रिश्ता भुज की दर्शकों के साथ बन गया है. और ये जो रिश्ता बना है, उस रिश्ता को आगे कैसे हम लेके जाएं, जैसे कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को भी बेनिफिट मिले और यहाँ के रंग कर्म को भी कैसे बेनिफिट मिले, तो ऐसे कुछ ना कुछ कार्यक्रम आगे भी हम करते रहेंगे. जैसे अभी मैंने कहा है, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो रेपर्टरी कंपनी 60 साल की पूर्ति हो रही है 2024 में, तो उस उपलक्ष्य में हम एक भारत टूर की प्लान कर रहे हैं, इंडिया टूर का. उसमें ग्लोबल टूर भी प्लान कर रहे हैं, लेकिन उस टूर जब करेंगे तो ज़रूर भुज एक उसका डेस्टिनेशन होगा. यहाँ पे हमारे रेपर्टरी कंपनी आएगी और यहाँ कुछ अच्छा नाटक प्रदर्शित ज़रूर होगा.
तो उससे हम शुरू करेंगे और आगे अलग अलग कार्यक्रम टीआई के माध्यम से हो, रेपुटेड कंपनी के माध्यम से हो या एक्सटेंशन प्रोग्राम के माध्यम से हो, ज़रूर यहाँ के रंगकर्मी के लिए आगे भी हम करने की चाहेंगे। मुंशी सर, अभी 6 तारीख को बंगाली था और आज मराठी, तो गुजराती हमारे जो भुज के दर्शक को, आज तो आप साक्षी भी थे, तो जो नाटक को जो महसूस किया है और तालियां जो बजाई है, तो ये भाषा नहीं होते हुए भी, क्योंकि ड्रामा में नाटक में कोई भाषा मायने नहीं रखती है, ताली बजा के अप्रिशिएट भी किया। देखिए, रंग कर्म या रंग का कोई अपना भाषा होता है, उसमें कोई उड़िया या तेलुगु तमिल नहीं होता है। तो जो आज मैंने देखा मराठी नाटक 3 घंटे का नाटक था और यहाँ के दर्शक बिल्कुल शांति से बैठ के लास्ट तक देखा। उसके बाद उसके जो डायरेक्टर के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ, उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो यहाँ के जो दर्शक है वो बहुत उच्च कोटि का दर्शक हैं और यहाँ की जो यंग जनरेशन जैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, सचमुच में काबिले तारीफ़ था। उनकी जो समझ है, उनके जो विचार है और इस रंग कर्म के ऊपर जो उनका सोच है, वो अपने आप कहता है जो यहाँ के दर्शक बहुत ही सोच समझ रखने वाले हैं, बहुत ही मतलब ज्ञान रखने वाले दर्शक हैं। तो ये यहाँ हमारे जो ये फेस्टिवल है वो अपने आप में बहुत ही सफल रहा है और मुझे लगता है जो ये भुज एक अच्छा डेस्टिनेशन है रंग कर्म को बढ़ाने के लिए और आगे भी ऐसे होना चाहिए और हम इसको करेंगे। सर, आपके शेड्यूल में नहीं था, आप आए, कितना खुशी हुआ, अगर नहीं आते तो क्या मिस करते सर? नहीं, मैं तो सचमुच में पता नहीं भुज की आना, मुझे मेरे दिमाग में बैकग्राउंड में कभी होता है ना मुझे जाना, कहाँ जाना है तो भुज जाना ही है। तो जिसकी चलते मेरे चाहत थी आने का और आने के बाद जो मैंने सोच के आया था उससे कहीं गुना यहाँ के लोग, यहाँ की जो लोकेशन और यहाँ की जो हाव भाव उससे कहीं गुना ज़्यादा था। और एक बार आने के बाद जैसे कहते ना, यू फॉल इन लव, सो मुझे भुज के साथ एक अपना संबंध बन गया है। तो आगे भी मैं खुद भी आऊँगा, परिवार के साथ आऊँगा और यहाँ के कुछ दिन बिताऊँगा। एलएसडी को एक ऐसे विचार आया कि भुज के अंदर अपने को ड्रामा प्ले ऐसा रखना है, वो एलएसडी को विचार कब से आया और क्यों आया? विचार देखिए, मैं अभी एनएसडी में काफ़ी दिन से हूँ, अभी 7-8 साल से हूँ। तो एनएसडी में हम हमेशा, मेरे उससे पहले भी जो चेयरमैन थे रतन ध्याम जी थे, बामन केंद्रे जी थे और अभी जो हमारे परेश रावल जी हैं, तो हम लोगों ने हमेशा कोशिश किया है उस जगह में जाएं जहाँ पे, क्योंकि यूजुअली क्या होता है सरकारी प्रोग्राम बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता मेट्रोस में होते हैं, तो मेट्रो से हट के जो रिमोट लोकेशन है वहाँ जाना थोड़ा सा कष्टकर होता है, उसके लिए ज़्यादा आपको परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन हमने कोशिश किया है ऐसे जगह जाएं जहाँ के कभी किसी ने गया नहीं है। और ये खाली आप भुज नहीं है, इस बार जो हमारे फेस्टिवल है भारत रंग महोत्सव है, ऐसे ऐसे जगह, जैसे मैं कहूँगा उत्तराखंड में रामनगर कभी नहीं गए हैं, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद तो सब कोई जाते हैं, विजयवाड़ा कोई नहीं गए, विजयवाड़ा हम कर रहे हैं। ऐसे ही आसाम में गुवाहाटी तो सब कोई जाते हैं, लेकिन हम डिब्रूगढ़ जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सोच रहा है कि हम उस एरिया में जाएं, लोकेशन में जाएं जो कि लोग वहाँ पर ऐसा उच्च कोटि का रंग कर्म देखने के लिए उनको मौका मिले और नए नए एरिया में जाना चाहिए। ये हमारा एक उद्देश्य रहा है। सागर सर, हमें खुशी होगी क्योंकि हमारे आर्टिस्टों से दोनों रजिस्ट्रार और आपने जो मिलने का समय निकाला ड्रामा के पहले, बहुत ये हमारा आर्टिस्ट खुश हुए। सर, क्या चर्चा हुई और कैसे सवाल आया आपके पास, जो हमारे जो कच्छ के जो आर्टिस्ट आपके साथ दोनों के साथ मुलाकात हुई और बहुत खुश भी हुए? हाँ, तो उसमें यही है कि जैसे हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो एम है, जो पर्पस है, वैसे तो जो है 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स होता है इन ड्रामेटिक आर्ट्स। उसके साथ साथ जो है ना एक हमारा जो मोटिव ये है कि जो है ना थिएटर को किस तरीके से डेवलप करना है, प्रमोट करना है। तो उसी को पर्पस को पूर्ति करने के लिए हम लोग जो है एक एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है हमारा अलग से बनाया हुआ है, उसके थ्रू हम जो है हर एक भारतवर्ष के जो भी राज्य हैं और राज्यों के अंदर जो रूरल एरियाज है, ग्रामीण क्षेत्र है, अंदर जाकर जो है वहाँ थिएटर वर्कशॉप करते हैं और वहाँ के बच्चों को इकट्ठा करके जो है पूरा मतलब वर्कशॉप करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं उनको। हमारे यहाँ से जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, वो वहाँ जाकर जो है लाइटिंग की, साउंड की पूरी ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद फिर एक प्रोडक्शन तैयार होती है जो है, और उसके साथ साथ जो है टेक्निकल भी वर्कशॉप की जाती है। मतलब ये हर जगह ऐसे करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, ये तो ड्रामा प्रोडक्शन होती है, हम लोग जो है ट्राइबल फेस्टिवल भी करते हैं, जो गांव के जैसे संथाला हैं या हमने जो है कैंजूर उड़ीसा के अंदर है, वहाँ पे भी ट्राइबल फेस्टिवल किया, जो बहुत ही निम्न स्तर के, मतलब उनको पहचान नहीं मिलती है, वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने उनको पहचान दी और उनको निकाल के मतलब कि उनके गाँवों से जो उनका ट्रेडिशनल जो डांस है
उनको डांस को जो फेस्टिवल के माध्यम से जो है हमने जैसे शांति निकेतन में किया, कलकत्ता में किया, अलग अलग राज्यों में मतलब किया जो है, और उससे जो है वो आर्टिस्ट इतने खुश हुए, उनकी कला को जो है सभी लोगों ने देखा, और इस तरीके से हम जो है जो कलात्मक जो मतलब लोग हैं उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। मतलब उनको हम बॉम्बे में भी ले जाते हैं, उनको जो ट्राइबल आर्टिस्ट हैं जो बेचारे पुअर होते हैं, जो बहुत गरीब होते हैं और मतलब उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो वो काम जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कर रहा है हर एक क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में और ये ट्राइबल के क्षेत्र में। सागर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि कच्छ है वो पूरा रिमोट एरिया है। हाँ। यहाँ पे आर्टिस्ट लोग बहुत हैं। अगर उनको एनएसडी आना है तो ऐसी कोई स्पेसिफिक कोई ऐसी लाइन है, क्योंकि आपके नॉर्म्स जो है एनएसडी के वो अलग है। यहाँ पे थोड़ा वो एजुकेशन या उसकी तरह से थोड़ा नहीं भी हो सकता है, तो उसके लिए स्पेशली आप ऐसी एनएसडी के अंदर कोई जोगवाई रखी हुई है कि भाई रिमोट एरिया से कोई कलाकार आ रहा है तो उसको अगर एनएसडी ज्वाइन करना है तो वो किस तरह से उसको आ सकता है? नहीं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि एनएसडी की अलग नॉर्म्स नहीं, ये तो जो कला है, अगर जो अच्छा आर्टिस्ट है, मैं आपको बता दूं नागपुर से एक आर्टिस्ट थे जिनका नाम था यशवंत निकोसे। ये आप सुनने वाली बात है, बहुत मेरे एग्जाम्पल अभी मुझे ध्यान में आया, तो वो जो है जादूगरी का काम करते थे जो है ना, तो वो हिंदी भी मतलब इंग्लिश हिंदी जो है बहुत उनकी कमज़ोर थी, तो उन्होंने जो है ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, 25-30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, तो उन्होंने जो है मतलब अप्लाई किया, उन्होंने वो एक चाय की दुकान पे जो है चाय पी रहे थे जो है, और कोयले की जो बोरी होती है, चाय आने में समय लग रहा था, ठीक है, तो एक मैगजीन पड़ी हुई थी, मैगजीन उसने उठाई कोयले की बोरी से, तो मैगजीन ऐसे पढ़ने लगे वो जो है, पढ़ते पढ़ते मतलब नेशनल स्कूल ड्रामा का जो है नसीरुद्दीन शाह का लेख था उसके अंदर कि भाई मैंने यहाँ से ट्रेनिंग ली नेशनल स्कूल ड्रामा से जो है, तो ये ऐसा जब उसने पढ़ा तो उसके मन में एक जादूगर था वो यशवंत निकोसे, और उसके मन में यह आया कि नेशनल स्कूल ड्रामा दिल्ली के अंदर है, उसने दिल्ली भी नहीं देखी थी जो है, वो फिर मतलब दिल्ली आया, और इतनी मुश्किलात से दिल्ली आया कि उसकी जो मदर है उसको आने नहीं दे रही थी कि तू दिल्ली में जाके बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरीके से उसने मतलब स्टेशन पर जब वो माँ उसको छोड़ने के लिए आ रही थी, मना कर रही थी, लेकिन वो जो है जिद कर रहा था कि नहीं मुझे जाना है, मुझे तो जो है कलाकार बनना है, रंगमंच कलाकार बनना है, तो उसने जो है ज़बरदस्ती जो है ट्रेन में चढ़ा, और ट्रेन में जैसे जा रही, जैसे फिल्मी सीन होता है ना, तो उस तरीके से ना माँ ने हाथ पकड़ा, लेकिन उसने अपनी माँ का हाथ झटक दिया जो है, झटक के जो है फिर वो ट्रेन में जो चला दिल्ली की ओर एडमिशन लेने के लिए, और उसके उन्होंने आके एनएसडी में एडमिशन लिए हैं। तो जो आपकी दर्शकों के लिए आप पूछना चाह रहे हैं जो एनएसडी में कैसे जोड़ सकते हैं, तो उसमें 3 चीज़ें हैं, क्योंकि जो एनएसडी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया से रिगोरस सिलेक्शन प्रोसेस में आते हैं। उसके लिए किसी भी एरिया का कोई टैलेंट बच्चा है तो ढूंढ के हम लेके आते हैं। तो वो जो बच्चे हैं हमारे जो सिलेक्शन प्रोसेस से जब डिक्लेयर होता है तो वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ के आसपास का जहाँ प्रिलिमिनरी सेंटर है वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, फिर दिल्ली में आ सकते हैं। और यहाँ से गुजरात में काफ़ी सारी है, राजू बरोत हैं, भार्गव ठाकर हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से चयन होके जाके वहाँ पढ़ाई किए हैं। दूसरा है हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, खास करके जो फेस्टिवल सागर साहब ने नाम लिया है आदि रंग महोत्सव, उस आदि रंग महोत्सव में हम कोशिश करते हैं हर राज्य का जो ट्राइबल फॉर्म्स है, फोक फॉर्म्स है, उसको भी हिस्सा दें। तो उसमें भी हम लोग गुजरात की जो अलग अलग ग्रुप्स है उनको चयन करके एक जगह ला के वो एक प्लेटफॉर्म देते हैं। उसमें 20 से 22 स्टेट्स की अलग अलग फॉर्म की ट्राइबल फोक फॉर्म वो एक मंच देते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों का जो चिल्ड्रन के लिए होता है बाल संगम और जश्न बचपन, उसमें भी हमने जो बाल रंग करने वाले जो बच्चे हैं, नाटक करने वाले हों या कि फोक फॉर्म है, उनको भी हिस्सा देने के लिए दिल्ली बुलाने के लिए हमारा उसमें रहता है। तो जो भी यहाँ की जो चिल्ड्रन आर्टिस्ट हैं या बड़े आर्टिस्ट हैं, फोक आर्टिस्ट हैं, वो ये सब जो हमारे कार्यक्रम है वो कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं और उस माध्यम से वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी जा सकते हैं। या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहीं अगर ऐसा फेस्टिवल करता है एक मंच में जहाँ पे हर राज्य से लोग आ रहे हैं, तो ये लोग जाकर भी परफॉर्म कर सकते हैं। प्रदीप सर, फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी तब पद्मश्री मनोज जोशी सर एंड हमारे यहाँ लोकल एमपी है जो विनोद चावड़ा सर, वो दोनों आए थे और दोनों ने बस बहुत अच्छा इंटरव्यू भी दिया। उसने बोला कि
अगर यूनिवर्सिटी के साथ एनएसडी का जो टाइप होता है सर, तो मेरे ख्याल से कि जो स्टूडेंट है वो भी मतलब पढ़ते पढ़ते अगर अच्छा उसमें आर्ट है तो वो एनएसडी को भी मिल सकता है और एनएसडी भी समृद्ध हो सकती है। क्या बोलेंगे? मनोज जोशी जी बहुत बड़ा सब्जेक्ट को कहा है। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 में, उसमें कहा गया है कि कला की और आर्ट की एजुकेशन हर बच्चे को मिलना चाहिए। तो हर बच्चे को मिलने के लिए जब स्कूल करिकुलम है वहाँ पे भी थिएटर पढ़ाया जाए, ये सरकार का सोच है। तो वो एक माध्यम है जिसमें कि बच्चों को थिएटर के बारे में बचपन से पता चलेगा, आगे जाएंगे। उसको छोड़ के जो थिएटर अगर हम कहते हैं, थिएटर एक्चुअली फाउंटेन हेड ऑफ ऑल आर्ट फॉर्म्स। इससे म्यूजिक है, डांस है, आर्ट है, लिटरेचर है, सब कुछ है। तो थिएटर कहीं अगर समृद्ध है तो इसके मतलब वहाँ का लिटरेचर भी समृद्ध है, वहाँ म्यूजिक समृद्ध है, डांस समृद्ध है। तो थिएटर को अगर बढ़ावा देना है तो उसके लिए खाली यूनिवर्सिटी नहीं, उसमें बहुत सारे लोग आगे आना चाहिए। जैसे स्पोर्ट्स के लिए PSUs आगे आते हैं, प्राइवेट कंपनीज आगे आते हैं। तो ऐसे ही कल्चर या थिएटर को बढ़ावा देना है तो उसमें सोशल में एक आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा। उसमें यूनिवर्सिटी भी साथ में आ जाए, गवर्नमेंट भी साथ में आ जाए, PSU साथ में आ जाए, प्राइवेट सेक्टर आ जाए, जिसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रंग कर्म कर सकते हैं, कल्चरल एक्टिविटी कर सकते हैं, जहाँ पे कि थिएटर की वर्कर्स आर्टिस्ट को बेनिफिट मिलेगा, समाज को रंग कर्म देखने के लिए मिलेगा और आर्टिस्ट को थोड़ा से पैसा भी मिलेगा अपने जीवन यापन के लिए। तो इसलिए यूनिवर्सिटी के साथ साथ बहुत सारे लोगों का सहभागिता की आवश्यकता है। जैसे कि हमारे जो विरासत है, जो संस्कृति है, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं और साथ साथ जो कला को आधार करके जीने वाले लोग हैं उनको भी थोड़ा सा अच्छे पैसे मिल सकते हैं और वो भी अपना काम को अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। મિત્રો બસ આટલું જ બંને જે છે રજિસ્ટ્રારો અહીંયા આવ્યા અને મહત્ત્વની વાત છે કે 5 દિવસ કેમ નીકળી ગયા ખબર ન પડી। 4, 5, 6, 7, 8 અને આજે એ વિરામ છે એટલે બધાને લોકોને થોડુંક દુઃખ પણ થશે કે આ જે છે એ કાર્યક્રમ પૂરો થયો। વિરામ જે છે એ મારા મિત્ર અને ખાસ કરીને ખૂબ જોરદાર સવાલો પૂછ્યા છે ડાયરેક્ટરોને અને પ્રકાશ શુક્લાજીને હું નિમંત્રિત કરી અને પાછું જે છે અહીંયા વિરામ આપીશ। વિરામ તો નથી કારણ કે આ ટુ બી કન્ટિન્યુ છે, એટલે આ કોઈ ક્લોઝિંગ સેરેમની નથી પણ ટુ બી કન્ટિન્યુ સેરેમની છે। અને સાહેબે કીધું કે હવે જે રથ આવશે, રંગ મહોત્સવનો જે રથ, એ ભુજ થઈને જશે, ત્યારે ખુશીની વાત છે। શુક્લાજી, કઈ રીતે જુઓ છો 5 દિવસનો મહોત્સવ? કહી શકાય કે એક દિવાળી આવી હતી बिल्कुल કલાકારો માટે અને 5 દિવસનો આજે વિરામ છે, શું કહેશો? जी जी भारत रंग महोत्सव NSD બહુ માતબાર નામ નાટ્ય અને કલા જગતનું, અને એણે ગુજરાતના કચ્છ જેવા રિમોટ પ્લેસને પસંદ કર્યું। તો પરેશ રાવલ સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે એમણે આ સરસ મજાનું સૂચન કર્યું અને એ સૂચનને તરત NSDએ સ્વીકારી લીધું। વિનોદભાઈ, બાકી આખી ટીમ છે એ લોકોએ સપોર્ટ કર્યો। આપ મીડિયાકર્મી અહીંયાના સ્થાનિક 5 દિવસ તમે હાજર રહ્યા અને ક્ષણે ક્ષણોનું લાઈવ જે કવરેજ કર્યું આપે, તમારો પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। જે કલાકારો આવ્યા હતા એટલા મંજેલા, એટલા રિયાઝ કરેલા અને એક નવા પૈસાનું પણ અભિમાન નહીં। ક્યા વાત! બહુ હળીમળીને રહેતા હતા, મળતા હતા, ખુલ્લા દિલથી વાત કરતા। ઘણીવાર એવું થાય કે આપણામાં હોય નહીં અને ખાલી ગળો ઘણીવાર છલકાતો હશે, પણ આ બધું હોવા છતાં પણ એટલા જ વિનમ્ર કલાકારો, અતિશય વિનમ્ર કલાકારો, અને એ લોકોની ભાવના હતી કે આ બાગ ખીલે। ક્યા વાત! લોકોએ જે અંતરંગ સવાલો પૂછ્યા એના પણ એ લોકોએ બહુ નિખાલસતાથી જવાબ આપ્યા। તો આ જે આત્મીયતા હતી ને, એ એક પ્રેરણાદાયી હતી। તો મિત્રો, આ પ્રેરણાદાયી આત્મીયતા અને હવે એ કન્ટિન્યુ રહેશે અને આ રિમોટ એરિયા પણ મહત્ત્વનો છે, કારણ કે સરહદ જે છે એ જાગતી રહે, સરહદ જે છે એના સંત્રીઓ જાગતા રહે, અને એના માટે જે આ પ્લેટફોર્મ આપ્યું છે સરકારે, અને ખાસ કરીને NSDના ચેરમેન પરેશ રાવલે જે આ પ્લેટફોર્મ આપ્યું, રજિસ્ટ્રારો પણ આવ્યા, ત્યારે એક મહત્ત્વનો એક અહીંયા કહી શકાય કે 5 દિવસનો રંગ મહોત્સવ વસુધૈવ કુટુંબકમ, આખું વિશ્વ જાણે કુટુંબ છે એવો માહોલ જોવા મળ્યો। ઋતુરાજસિંહ કરણ સાથે હું જયમલસિંહ જાડેજા, મા ન્યૂઝ, ટાઉન હોલ, ભુજ, કચ્છ, ગુજરાત।